Good morning, students. Hello and welcome to the class. How are you? I hope you all are good. I'm doing great. And as you all know that today we are going to complete this chapter that we have already started in our previous classes. And the chapter is chapter 7, The Birth by A.J. Cronin. We all know that what the chapter is about. It's the about of the birth of a child that the parents were very excited for the child because this happiness was coming to their life after the long wait of 20 years. So we can just think how precious are the kids for the parents. So, and especially when they are just having their dream come true after 20 years, so we can just imagine their happiness they were having. And on that certain verge, the wife was in little problem. Now, the only doctor available in that particular small town was Dr. Andrew Manson. And Joe Morgan went to him, calls him, वो आते हैं उनके वहां पे, but we all know, we have gone through the text, जिसमें हमें ये पता चला था that Andrew was going from the most unhappiness वाला जो phase था उनकी life का उसमें से. So he was quite haphazard sort of एक माइंड सेट जो होता है ना उनका वैसा था बट स्टिल ही ट्राइड हिज बेस्ट बट द ट्रेजेडी हैपेंस दैट व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न द चाइल्ड इज लाइफलेस. Now, as a doctor, now Andrew thinks that his duty towards both, whether he should look at the child and he should try and give one more effort to save the child, or should he look up to the mother because saving the mother is इस सिचुएशन में जहां पे चाइल्ड इज ऑलरेडी लाइफलेस बट द मदर यू कैन स्टिल सेव, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर ज्यादा जाती है एज अ डॉक्टर. यू डेफिनेटली थिंक्स दैट यू शुड सेव अ मदर. नाउ उन्होंने यही किया. फर्स्ट ऑफ ऑल ही गेव ऑल द एफर्ट्स ऑल द एनर्जी जस्ट टू सेव द मदर एंड ही वाज सक्सेसफुल एंड द मदर वाज नाउ आउट ऑफ डेंजर. Now, after once the mother was in good conditions, he asked the nurse midwife, just where's the baby? Now, जब वो छोटा बच्चा उनको मिलता है, the nurse एकदम helpless हो जाती है, बोलती है कि that the child is lifeless. अब डॉक्टर को बच्चे के साथ में क्या करना है? Now she just points below the bed and she says there. Now the doctor fishing under the newspapers and the other things that were piled up under the bed, वो उसमें से just fish up करके उस बच्चे को लेके आते हैं. Now he brings that child in his hand. उसे ऊपर एक ब्लैंकेट लेते हैं, उस ब्लैंकेट पे उसको लिटाते हैं छोटे बच्चे को and he just looks at the child and वो सोचते हैं कि क्या किया जाए. Now first of all he diagnoses कि क्या हो सकता है इस बच्चे को. The body of the child was completely white, that is there was no circulation, completely white, and the head and the legs were just limping. बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी उस बॉडी में. एवरीथिंग वाज क्वाइट डिस्टर्ब्ड. उन्होंने सोचा क्या. नाउ ही जस्ट थिंक्स बैक, ही रेसेस बैक टू द टाइम जिस वक्त उन्होंने ये अपनी प्रैक्टिस की थी या वो जिस वक्त वो पढ़ते थे उस वक्त उन्होंने बहुत सारे केसेस पढ़े थे, केसेस के बारे में देखा था. नाउ ही कम्स टू अ पॉइंट जहां पे उन्होंने देखा दैट ही डायग्नोस द चाइल्ड विद अ डिजीज. दिस अ वेरी, वी कैन से, बहुत ही वैसी होती है, फ्रीक्वेंट सी डिजीज होती है छोटे बच्चों में, कुछ पल के लिए होती है. इफ द चाइल्ड is properly treated तो उससे ठीक हो सकता है. Aphaxia pallida. Now aphaxia pallida is what? When the content of the oxygen in your body reduces and carbon dioxide increases, and because of that your heart is not working properly and proper circulation नहीं हो पाता. Because of that no circulation, your body goes white and limp and you are in a lax position. तो ये वो वाला पार्ट था. Now thinking कि उस समय में क्या ट्रीटमेंट दिया गया था to this patient having aphaxia pallida, तो यही उन्होंने सोचा. So on an instant he was on his feet and he asked the nurse that go bring 2 basins and in one there should be hot water and in one there should be cold water. Now you all must have seen jugglers. वो जगल करते हैं, like उनके हाथ में 2 glasses होते हैं, balls होती है, left right. We are just not able to identify कि ये glass किधर से आ रहा है, ball किधर से आ रही है और किधर जा रही है, right? तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने भी ही जस्ट जगल द चाइल्ड. अब नर्स ने पहले तो थोड़ा सा रिलक्टेंटली वो बेचारी गई, लेके आई 2 basins हॉट एंड कोल्ड वाटर. नाउ द डॉक्टर ड्रू वन थिंग. डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने पहले एक हॉट वाटर में बच्चे को डिप करता, देन कोल्ड, देन हॉट, देन कोल्ड. ही जस्ट लाइक अ क्रेजी जगलर, ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू. दैट इज, फर्स्टली ही वाज प्लंजिंग इट इनटू द आइसी वाटर एंड देन इनटू द स्टीमिंग बाथ. तो ये चलता रहा. Now doing this 15 minutes passed. Sweat was running because of exertion. The whole body of doctor was sweating. The sweat was running down into Andrew's eyes and the eyes were blinding. आंखों में पसीना चला गया. So water की लेयर आते you just go blind.
तो यही उनके साथ हुआ एंड वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन एंड हिज स्लीव वाज हैंगिंग डाउन एंड इट वाज ड्रिपिंग विद द स्वेट. ही ब्रेथ पैंटिंगली, वो बहुत ही मुश्किल से ब्रीथ कर पा रहे थे, हाफ रहे थे, बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड. बस उस बच्चे की वो जो लैक्स बॉडी थी, द अनकॉन्शियस बॉडी, उसमें से बिल्कुल भी देयर वाज नो ब्रीथिंग. उसमें से वो जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चा सांस भी नहीं ले रहा था. Now the doctor, firstly he thought that everything was going to be okay and he is going to be successful in the process that he is doing. But now after this 15 minutes of great exertion, his desperate sense of defeat pressed him and he just found, unko samajh mein aa gaya that ultimately he is not going to get success in this process. Unko koi success nahi milne wali and a raging kind of hopelessness, that is unki sari उम्मीद खत्म हो गई. एंड ही जस्ट फेल्ट कि मिडवाइफ जो थी, जो नर्स थी वहां पे, वो खड़ी होके बहुत ही स्टार्क से कंसंट्रेशन के साथ में उन्हें देख रही थी. वाइल वहां पे उस बच्चे की जो ग्रैंड मदर थी, जो नानी थी उसकी, वो वहां पे शी वाज जस्ट स्टैंडिंग टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द वॉल. वो वहां खड़ी रही एंड हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट द थ्रोट. शी वाज अटरिंग नो वर्ड, जस्ट हर आईज वर बर्निंग अपॉन हिम एंड ओह दैट ओल्ड वुमन. अब उनको देखने के बाद में द डॉक्टर रिमेम्बर्ड दैट दिस ग्रैंडमदर वाज हैविंग अ ग्रेट लॉन्जिंग फॉर द चाइल्ड एंड शी वाज हैविंग सच अ ग्रेट लॉन्जिंग. नाउ वी कैन जस्ट इमेजिन कि इस बच्चे की मदर के लिए कितनी लॉन्जिंग होगी इस चीज की. एंड ऑल दीज थॉट्स केम टू द डॉक्टर्स माइंड, बट डॉक्टर सेज कि अभी इन चीजों का कोई फायदा नहीं है. ऑल द थिंग्स आर फ्यूटाइल एंड इट्स बियॉन्ड एनी रेमेडी, बियॉन्ड एनी ट्रीटमेंट, बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू रिवाइव द चाइल्ड बैक टू द लाइफ. Now all over the floor it was a draggled mess. पूरा कचरा ही कचरा हो गया था कमरे के अंदर. एंड स्टम्बलिंग ओवर अ सोपिंग टॉवल, एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड. एंड्रयू से ऑलमोस्ट वो बच्चा उनके हाथ से गिरने वाला था, विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड, क्योंकि वो बच्चा वॉज कंप्लीटली वेट. बिकॉज जब आप पानी में इतनी देर से बच्चे को डिप कर रहे हो तो द चाइल्ड इज गोइंग टू बी वेट एंड वाइट था, तो जस्ट लुकिंग लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश. एंड यू नो व्हाट, फॉर द मर्सी सेक उस मिडवाइफ ने बोला कि सर, माना इस बच्चे में लाइफ नहीं है, सर स्टिल बॉर्न चाइल्ड, बट प्लीज कुछ तो दया करो. यू आर जस्ट प्लेइंग विद दिस चाइल्ड लाइक अ टॉय, ऐसा तो मत कीजिए. तो शी वाज जस्ट हैविंग अ मर्सी सेक कि उसको दया आ रही थी उस बच्चे पे. एंड्रयू डिड नॉट हीड हर. एंड्रयू ने नहीं बात सुनी. बीटन, डिस्पेयरिंग, हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, वो बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे थे, वो बहुत दुखी थे एंड उन्होंने इतनी मेहनत की फॉर कंटिन्यूअसली द लास्ट हाफ एन आवर, बट कुछ नहीं हो पाया. सो ही स्टिल वांट टू हैव वन लास्ट एफर्ट. उन्होंने बोला इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, आई एम गोइंग टू हैव वन लास्ट एफर्ट एंड दैट इज इज गोइंग टू रब द चाइल्ड विद अ रफ टॉवल. एक रफ टॉवल लिया और उस बच्चे को एकदम से उन्होंने बहुत कस के रब किया. नियरली वी कैन से दैट ही वाज क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स. आप लोगों ने कभी देखा होगा सीपीआर देते हुए किसी को, जब ब्रेथ चली जाती है, दिस जस्ट द लास्ट एफर्ट कि किसी की ब्रेथ वापस आ सके. बोथ द हैंड्स एनक्लोज्ड वन अप द अदर, चेस्ट को एक तरह से बहुत हार्डली प्रेस किया जाता है, दैट इज क्रश. समटाइम्स क्या होता है, कुछ म्यूकस जैसा कुछ अगर आपका किसी भी उसके पाइप के अंदर ब्लॉक हो गया है, तो अगर आप उसको बहुत हार्ड जो देते हो, बिकॉज कोई पेशेंट है बहुत समय तक अगर इज ऑन बेड, तो ये चांसेस रहते हैं. तो सीपीआर समटाइम्स मेक्स द पर्सन रिवाइव बैक. तो उन्होंने वो सेम वही टेक्निक से उस बच्चे की चेस्ट को ऑलमोस्ट क्रश कर दिया था, यू कैन से, releasing and crushing the little chest with both his hands and trying to get the breath into that limp body. And वो पूरी कोशिश कर रहे थे that the breath should come in this limp body. जब तक सर्कुलेशन नहीं है, there is no strength in your body and your body is completely in a lax and limping position. तो वही चीज उस बच्चे के साथ में हो रही थी. And then we can say that miracle happens. As by a miracle, this pygmy chest, ये छोटी सी जो चेस्ट थी किसी बच्चे की, वो छोटे से, विच हिज हैंड्स एनक्लोज्ड, जो बिल्कुल उनके हाथ के साइज की थी, गेव अ शॉर्ट कंक्लूसिव हीव, अनदर एंड अनदर, उससे ये शॉर्ट और कंक्लूसिव सा हीव आया, एंड यू नो अनदर एंड अनदर, एंड एंड्रयू ग्रू गिडी. नाउ द सेंस ऑफ life springing beneath his finger after all that unveiling striving was so exquisite it almost made him feel faint. He redoubled his efforts feverishly. Now देखो, a sense of life just springing beneath his fingers, and after all जो unveiling striving था was so exquisite
that it almost made him faint. डॉक्टर अब जो होता है ना, आपने इतने एफर्ट्स किए एंड नाउ सडनली व्हाट यू आर एबल टू सी, अब जो आप देख पा रहे हो तो आपको सडनली ऐसा लगने लगता है, वंस यू कम टू द पॉइंट जब आपको लगता है दैट यस यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, अब आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, तो योर बॉडी गोज सो रिलैक्स, उस समय ना बस आपका मन करता है सब कुछ छोड़ दो, क्लोज योर आईज एंड जस्ट लाई डाउन। तो उनके लिए बिल्कुल वही सिचुएशन होगी, दैट इज इक्वल टू फेंटिंग वी कैन से। नाउ he redoubled his effort, जब उन्हें लगा that something, उस बच्चे में कुछ आ रहा है, उन्होंने अपने एफर्ट्स को रीडबल कर दिया, ठीक है, feverishly, वो बहुत थके थे, the child was gasping now deeper and deeper, अब वो बच्चा deeper and deeper the child started gasping, a bubble of mucus came from one tiny nostril, एक छोटे से tiny nostril में से एक bubble of mucus बाहर आया, and a joyful iridescent bubble, and it was a joyful iridescent bubble, अदरवाइज ऐसे बबल्स देख के किसी को खुशी नहीं होती है, बट दिस वाज एक्चुअल हैप्पीनेस, व्हाई यू नो, पता है क्यों? क्योंकि ये किसका था? दिस वाज अ जॉयफुल बबल, बिकॉज दिस बबल समवेयर शोज अस दैट द चाइल्ड हैज रिवाइव्ड टू लाइफ बैक अगेन, द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, लिम्स अब बोनलेस नहीं लग रहे थे, बिकॉज देयर वाज स्ट्रेंथ एंड लाइफ बैक इन द बोन्स, एंड द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेस, अब वो हेड जो ऐसे जिधर भी डायरेक्शन में दो वो उधर ही लुढ़का हुआ था, नाउ एज देयर वाज लाइफ, तो स्पाइन में स्ट्रेंथ आ गई थी एंड हेड वाज स्ट्रेट, द ब्लांच्ड स्किन वाज स्लोली टर्निंग पिंक, और वो जो ब्लांच्ड एकदम येलो व्हाइट स्किन थी वो धीरे धीरे पिंक हो रही थी, बिकॉज as the circulation started, तो धीरे धीरे the blood started circulating, and then exquisitely came the child's cry, और फिर we can say that exquisitely बच्चे के रोने की आवाज आई, dear father in heaven, the nurse sobbed hysterically, and it's come alive, अब नर्स जो थी बहुत ही हिस्टेरिकली, दैट इज वो नर्स जो थी वो बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना कि विश्वास होता भी है नहीं भी होता, एंड शी वाज सेइंग कि उसने बोला ओ डियर फादर इन हेवन, वो गॉड को थैंक यू कर रही थी, it's come alive, that it has come and it has come alive, बच्चा ठीक हो गया। एंड्रयू हैंडेड हर चाइल्ड, ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, एंड्रयू ने उस बच्चे को हैंड ओवर कर दिया उनको, एंड ही फेल्ट वीक, उन्हें वीक फील हुआ, बहुत ही डेज मीन अबाउट हिम, the room lay in a shuddering litter, blankets, towels, basins, soiled instruments, the hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum, the ewer knocked over, the kettle on its side in the puddle of water, upon the huggled bed, the mother still dreamed her way quietly through the anesthetic, and the old woman still stood against the wall. But her hands were together, her lips moved without sound, and she was praying. And now you know what, अब उन्होंने बोला now, एंड्रयू ने उस बच्चे को दे दिया, and now he was feeling weak and he was feeling dazed, because उसको ना दिमाग में कहीं एक relaxation था that the mother is fine and even the child is saved. About him, the room lay in shuddering litter, and now about him, जो रूम था it was in shuddering litter, मतलब पूरा कमरा जो था it was all कचरा ही कचरा था वहां पे, लिटर इज कचरा, अब वहां पे विद व्हाट इट वाज लिटरिंग, लिटरिंग कहता है अगली सा लगता है, बिखरा बिखरा सा, नाउ यू नो व्हाट क्या था वहां पे, देयर वर ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स थे, टॉवल्स, बेसिन्स, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, टॉवल्स थे, ब्लैंकेट्स थे, बेसिन्स थे, बहुत सारे सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स थे, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स कहने का मतलब बहुत सारे, जैसे आप बोलोगे कि ऐसे सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स जो आपने यूज किए किसी किसी चीज के लिए, वो सब वहां पे थे, हाइपोडर्मिक सिरिंज थी, द सिरिंज वो भी वहीं पे जमीन पे ही पड़ी थी बिखरी हुई, नाउ उसके अलावा कुछ ऐसे लिक्विड्स थे, एंटीसेप्टिक लिक्विड्स जो आप एज अ सॉल्यूशन यूज करते हो, दे वर आल्सो लाइंग ओवर देयर, एंड द थिंग एवरीवेयर, जहां पे भी वो जा रहे थे, ही वाज जस्ट नॉकिंग ओवर द थिंग्स, देयर वाज अ केटल ऑन इट्स साइड इन द puddle ऑफ द वाटर, एंड अपॉन द हडल्ड बेड द मदर वाज स्टिल लाइंग ड्रीमिंग, मदर अभी भी वहां थी एंड शी वाज ड्रीमिंग हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, बिकॉज शी वाज, उनको एनेस्थेशिया दिया हुआ था, शी वाज जस्ट अनकॉन्शियस सॉर्ट ऑफ कंडीशन में थी वो, शी वाज जस्ट लाइंग ओवर देयर, ओल्ड वुमेन स्टूड अगेंस्ट द वॉल, और वो ओल्ड वुमेन जो थी शी वाज जस्ट स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, वो वही, बोथ द हैंड्स वर टुगेदर, हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, उनके जो लिप्स थे वो चल रहे थे बट देयर वाज नो साउंड, दैट इज म्यूट मोड में ना, शी वाज कंटिन्यूअसली प्रेइंग, mechanically Andrew wrung out his sleeves, pulled on the jacket, बहुत ही जैसे मैकेनिकली बहुत ही फास्टली एंड्रयू ने अपनी जो स्लीव्स फोल्ड की हुई थी उसको पूरा उसने, he just wrung out his sleeves, pulled on his jacket,
I'll fetch my bag later, nurse. उन्होंने नर्स को बोला मैं अपना बैग बाद में आके ले जाऊंगा. He just went downstairs through the kitchen into the scullery. किचन में गए scullery वाले पोर्शन में, and his lips were dry. And because इतना परेशान थे, the lips got dry. At the scullery, he took a long drink of water. खूब पानी पिया उन्होंने. And he reached for his hat and coat. अपना hat and coat लेने गए. Just wore them off and he went outside. Outside, he found that Joe was standing on the pavement with a tense, expectant face. And Joe was standing there on the pavement. And of course, the father who's moving through that kind of face, वो किस कंडीशन में हो सकते हैं? टेंस एंड विद अ वेरी एक्सपेक्टेंट फेस की पता नहीं डॉक्टर आके क्या कहेंगे. आर दे बोथ ऑल राइट? उन्होंने तो कुछ नहीं बोला. क्वेश्चन वाज राइट कैन बी सीन ऑन द फेस एंड ही सेज ऑल राइट जो. ही सेड थिकली बोथ ऑल राइट. अब उसने बहुत ही थिकली सेज ऑल राइट जो, सब ठीक है, बोथ आर ऑल राइट, दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक है. एंड इट वाज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock. कितने हो चुके थे? It was 5 o'clock nearly, and a few miners were already in the streets. There were some miners, they were already on the street, and the first of the night shift moving out. और first night shift जो होती है ना, उसका move out करने का टाइम होता है. As Andrew walked with them, जब एंड्रयू उनके साथ वॉक कर रहे थे, spent and slow, he was walking with him, very spent, that is बड़ा lost सा था वो, and very slow. His footfalls echoing with the other. उनके footfalls echo कर रहे थे with the other people who were under the morning sky. वो people who were also walking under the morning sky. And he kept thinking blindly. वो blindly सोचते रहे. And oblivious to all other works he had done in blindly. अभी तक blindly में उन्होंने जितने काम किए हैं ना, today he thought and he realized that I have done something. कि yes, आज उन्हें ऐसा लग रहा था that he has actually done something. And God, I have done something real at last. And he says, yes, that God, at last I have done something real. Okay, so you know now, so he says that he has been in Blanley from so long, and as a practitioner or as a student or just as a human being, he have been continuously doing something or the other. But he says, God, I have done something real at last. Now, if you are helpful in saving somebody's life, अगर आप किसी की life save कर पाते हो, उससे बड़ा क्या होगा? Do you think saving somebody's life उससे बड़ा आप कुछ कर सकते हो? No. And if you get an opportunity that you are able to save somebody's life, ये आपके लिए सबसे बड़ी achievement हो सकती है, right? And the satisfaction that you have after this great achievement, वो आपको किसी achievement के बाद में नहीं मिलती. So this doctor who was so depressed, who was so tense after what happened, जो उनके साथ में हुआ, उनकी फ्रेंड वाला जो इशू हुआ, he was so depressed and he just says that यहाँ पे आके life is end, life is finished. अब कोई लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं रह गया. एंड व्हाई द गर्ल डिड समथिंग टू मी, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? दैट इज ही वाज इन सच अ स्टेट ऑफ माइंड दैट वेयर ही वाज नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग. वो कुछ नहीं सोच पा रहे थे उस पोजीशन में आके. एंड एट दैट मोमेंट वी कैन से दैट यस, जब उन्होंने ऐसा कुछ किया ना, ही सेज कि मेरी लाइफ का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव तो आज मैंने पूरा किया है. एंड टुडे आई कैन जस्ट थैंक गॉड एंड आई कैन से गॉड कि आज मुझे ऐसा लग रहा है दैट हैविंग अ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग इज फॉर सो मेनी इयर्स इन Blanley, I have been doing something or the other, but today I can say that yes, I have done something. Oh God, I have done something real at last. अभी तक तो जो था it was useless, I find, because this is in real which I feel as an achievement, and I feel that this is the life all about and nothing more than that. So we can see that हम कुछ भी पढ़ते हैं, it's a kind of story. जब आप इंग्लिश पढ़ते हो, you are able to increase your vocabulary, you are able to increase your, we can say, the grammar, reading skills, listening skills, understanding skills, all the skills. And on the other hand, each and every story gives you some message also. That is, तो यहाँ पे क्या है, अब देखो इन डॉक्टर के साथ में जो भी हुआ है ना, the past experience that actually was not his experience, just सिर्फ उनकी कहीं पे पढ़ी हुई चीज, कहीं पे सुनी हुई चीज उनके काम में आ गई. So you should be a good listener also. Sometimes we just listen to something, life के किसी ना किसी मोमेंट पे वो किसी की बात हमारे बहुत काम आती है. Now the time he was studying or the time he was practicing under someone, he got to know about a case. और वही केस की देखो, अगर उसने उस चीज को उस वक्त ध्यान से ऑब्जर्व किया था, ध्यान से सुना था, एंड ही मेमोराइज्ड इट एंड केप्ट इन हिज माइंड, दैट मेमोरी
and that remembrance helped him to save a life today, which agar unke dimag mein ye nahi aata, the child was stillborn, any doctor would have declared the child that this is a stillborn child, this is a child born lifeless, kuch bhi nahi hai, we are very sorry. उनका क्या जाता, दिस वॉज सिंपल एंड खत्म. बट कभी भी सुनी हुई बात जो थी, ही हैज यूज्ड हिज थॉट, उन्होंने उस थॉट को देखो यूज किया, एंड दैट पर्टिकुलर थॉट हेल्प्ड हिम सो मच. And along with that, whatever comes in life, life does not end, it keeps on moving, and you should always put an effort to make it more and more happy, and more you can say that at the end of the day, you can say that yes, I have achieved something. So this was, we can say that ultimately Dr. Andrew Manson, he had different kind of phases in life, but was depressed, but at the end he does such a great achievement that he really wishes to thank God, and he thanks God and he says, oh God, I have done something, and thank you so much that at last I can say that I have done something real at the last. Okay. Okay, so this is all for the chapter. Just go through the text. एक बार आप लोग देख लेना. If still there are doubts, कोई word, कोई line, completely a complete extract, you can say नहीं समझ में आ रहा, just mark it and we can solve it out tomorrow. Okay, go through the text. चलो, take care and now we'll meet tomorrow. Bye.